तुम लोग अपना अपना म्यूट कर लो, डिस्टर्ब होगा। देखो पहले हम लोग टेलर थ्योरम के बारे में, टेलर सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। ये यूनिट 1 का कुछ पोर्शन बचा था तुम्हारा। आज देखते हैं टेलर इनफाइनाइट सीरीज, मैक्लॉरिन इनफाइनाइट सीरीज और सीरीज बनाना। कोई फंक्शन दिया है उसके लिए टेलर सीरीज हमको बनाना। सी टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज। ये कौन आ गया भाई 59485। देखो fx, suppose this fx is a function of x, then from Taylor's theorem we know that fx plus h is equal to fx plus h into f dash x plus h square by factorial 2 f double dash x plus h cube by factorial 3 f triple dash x plus 1 plus h to the power n by factorial n f n x plus so on. Here f dash x, f double dash x, f triple dash x and so on f n x, all of these are existing. ये हमारा है कि सभी एग्जिस्ट कर रहा है। अब सेकेंड इज योर मैक्लॉरिन्स इनफाइनाइट सीरीज। दिस इज गिवन एज fx is equal to f0 plus x into f dash 0 plus x square by factorial 2 f double dash 0 plus x cube by factorial 3 f triple dash 0 plus 1 plus h to the power n by factorial n fn 0 plus 1। अब इन दोनों पे बेस देखो, एक एग्जांपल है एक्सपैंड log sin x plus h by टेलर्स थ्योरम। मींस हमको ये जो फर्स्ट एक्सपेंशन है इस तरह से हमको इस सीरीज को लिखना है, फंक्शन को लिखना होगा इस तरह से। सी हियर, सपोज fx is your log sin x, then from Taylor's theorem we need to find f dash x, f double dash x, f triple dash x and so on. So f dash x means differentiate this fx with respect to x one time. So this is log sin x, so it will be 1 by sin x into differentiation of sin x, it will be cos x, means it is cos x by sin x, so it will be cot x. क्या कर रहा है आदर्श तुम बार बार? एनोटेशन नहीं देना है तुम लोग को। तो f double dash x means differentiate this cot x with respect to x, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो f double dash x is minus cosec square x. Next differentiate again this one, so f triple dash x will be minus times 2 cosec x into differentiation of cosec x, it will be minus cosec x into cot x. So this is minus minus plus, so it is 2 cosec square x into cot x. This is your f double triple dash x. Now write fx plus h is equal to log sin x plus h. So it is fx plus h into f dash x plus h square by factorial f double dash x plus h cube by factorial 3 f triple dash x plus 1. Now substitute the values of fx, f dash x, etc. So fx plus h means log sin x plus h is equal to log sin x. This is your fx plus h into f dash x is your cot x. So it is h cot x minus h square by 2 cosec square x, because this f double dash x is minus cosec square x, plus h cube by 3 cosec square x into cot x, because this f triple dash x is 2 cosec square x cot x. This is your factorial 3. Factorial 3 means 3 into 2 into 1. So 2 cancel. So it is 3. So this is the expansion of log sin x plus h. This is the solution of first question. ये क्वेश्चन तुम लोग का एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो मान लो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। साजिद अंसारी क्या कर रहा है तुम भी? तुम लोग का एनोटेशन कैसे बंद किया जाए? एक सेकंड जरा मुझे देखने दो। सर कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। हाँ अभी दिखेगा, रुको, छोटा स्क्रीन है ना, अभी दिखेगा साहब। देखो अभी दिखा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, ऑब्टेन द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ log sin x इन पावर्स ऑफ x माइनस 3। ये कौन बोला था? अच्छा पुष्पा। पुष्पा अभी दिख रहा है? यस सर अभी दिख रहा है। हाँ ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी तुम लोग के एग्जाम में पूछा गया था। Obtain the first 4 terms in the expansion of log sin x in powers of x minus 3। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन देखो।
सिंस fx कैन बी रिटन एज f3 प्लस x माइनस 3, देखो 3 और माइनस 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज अगेन fx, इसी का हम लोग यूज करेंगे। एंड वी नो दैट fa प्लस h इज इक्वल टू fa प्लस h इंटू एफ डैश ए प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश ए प्लस h क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ए प्लस सो ऑन। Now we will substitute a is equal to 3 and h is equal to a minus 3. So this will be your h will be your x minus 3. So in this way we can get this log sin x as an expansion containing the terms x minus 3 and higher powers. See, fx is your log sin x. So fa will be log sin a means log sin 3 because a is your 3. Now f dash x means differentiate this log sin x with respect to x. तो ये हो जाएगा 1 by sin x into sin x का हो जाएगा cos x, so it is cos x plus by sin x means it is cot x. f double dash x means differentiate this cot x with respect to x, so this is minus cosec square x. ये फॉर्मूले तुम लोग को याद रखने होंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा करने में. Now f triple dash x, so it will be differentiate this one minus cosec square x with respect to x, so it will be minus 2 cosec x into minus cosec x cot x, so it is 2 cosec square x cot x as in our earlier example. Therefore fx is your f3 plus x minus 3, so this will be f3. Now see here from this formula, this is your a, fa means f3 plus h means x minus 3. Substitute here a is equal to 3 and h is equal to x minus 3, so x minus 3 to f dash 3 plus h square by factorial 2 means x minus 3 whole square by factorial 2 f double dash 3 plus h cube by factorial 3 means x minus 3 whole cube by factorial 3 f triple dash 3 plus so on. Now this is f3 means log sin 3 plus x minus 3 into f dash 3, so x minus 3 into f dash 3 is cot 3 because f dash x is cot x, minus x minus 3 whole square by 2 into cosec square 3 because this f double dash 3 is minus cosec square 3 plus x minus 3 whole cube by 3 into cosec square 3 into cot 3 and so on minus so on. So this is the expansion of log sin x in powers of x minus 3. तो इस तरह से और भी कुछ प्रॉब्लम देगा सिमिलर टाइप का, तो तुम लोग आसानी से कर सकते हो. नेक्स्ट, प्रूव दैट यूजिंग टेलर्स थ्योरम. हाँ बोलो, पिछले वाला भी जो क्वेश्चन बताया उसमें बोलो, फिर से बोलो, आवाज कट कट के आ रही है. पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ. कहाँ पे बताओ, किस लाइन पे प्रॉब्लम है, लाइन बोलो. यहाँ जो है ना लाइन f इक्वल टू log sin a इक्वल टू 3 है a is equal to 3 है, ठीक. एंड fx इक्वल टू log sin x है. हाँ, fx equal to log sin x, दिस इज योर गिवन गिवन दिया हुआ है. हाँ हाँ, ये दिया हुआ है log sin x को. sin x का डिफरेंशिएशन किया ना हम लोग. फिर से बोलो, आवाज कट जा रही है, फिर से बोलो. log sin x का डिफरेंशिएशन किए ना हम लोग. हाँ, log sin x को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि देखो हमें f dash x चाहिए. f dash x का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x. तो f dash x मींस log sin x को डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू x. log x का क्या होता है, 1 by x होता है. So log sin x is 1 by sin x, but sin x is again a function of x. So differentiation of sin x is cos x. So this will be cos x by sin x. It means it is cot x. ठीक है सर, यही प्रॉब्लम. ठीक है, क्लियर हो गया ये एग्जांपल. यस सर. अच्छा चलो, फिर कुछ प्रॉब्लम तुम लोग के लिए है. प्रूव दैट यूजिंग टेलर्स थ्योरम sin x plus h is equal to sin x plus h into cos x minus h square by factorial to sin x plus 1. वही टेलर सीरीज का यूज कर लेना. sin inverse x plus h, sin inverse x plus h by root 1 minus x square plus h by 1 minus x square to the power 3 by 2 h square by factorial 2 plus 1 plus 2x square by 1 minus x square to the power 5 by 2 into h cube by factorial 3 plus 1. यहाँ भी तुमको sin inverse x का डिफरेंशिएशन याद करना पड़ेगा. दिस इज इक्वल टू 1 by root 1 minus x square. नेक्स्ट, log 1 minus x plus x square, तो दिस इज इक्वल टू minus x plus x square by 2 plus 2 by 3 x square 2 by 3 x cube plus x power 4 by 4 minus x power 5 by 5 and so on. तो ये तीनों प्रॉब्लम भी इसी तरह से हो जाएंगे. खाली fx is equal to sin x ले लोगे तो फर्स्ट निकल जाएगा.
fx इक्वल टू साइन इनवर्स x लेने से यहाँ निकल जाएगा, और यहाँ का तुमको देखना नहीं होगा तो मुझे बताना, थर्ड वाला। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम पे आ जाते हैं। इस पे भी प्रॉब्लम पूछता है, एक्सपेंड e टू द पावर x बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। सेकंड है एक्सपेंड log x 1 प्लस x बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, sin x बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, cos x, tan x, log cos x। तो ये जो log cos x है ये वाला हम सॉल्व कर दिए हैं इसमें। सी y इज इक्वल टू log cos x, और ये जो मैक्लॉरिन थ्योरम से हमें मिलता है yx इज इक्वल टू y0। मैक्लॉरेंस थ्योरम पढ़ाई हुआ है क्या क्लास में? क्या चीज? मैक्लॉरेंस थ्योरम पढ़ाई हुआ है? हाँ, ये तुम लोग का जो फर्स्ट यूनिट का कुछ पोर्शन छूटा था वो हम करा रहे हैं। सेकेंड यूनिट तो तुम लोग को उतना समझ में नहीं आया था, एरिया वगैरह, तो इसीलिए हम सोचे पहले इसको करा देते हैं, और इसके बाद तुम लोग का थर्ड यूनिट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको करा देंगे। ठीक और है सर। हाँ, उसके बाद फिर वापस आएंगे उधर जो छूटा हुआ है कुछ यूनिट 2 में। तो yx इज इक्वल टू y0 प्लस x इंटू वाई डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू y डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल से y ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। ये हो गया तुम लोग का मैक्लॉरिन थ्योरम। ठीक, अब यहाँ yx इज इक्वल टू log cos x है, हमको y0 चाहिए, y डैश 0, y ट्रिपल डैश 0, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट y0 निकालना है, y0 मीन्स log cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, so log 1 मीन्स 0। नेक्स्ट y डैश मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस log cos x, ये क्या हो जाएगा 1 बाई cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो इट विल बी माइनस sin x बाई cos x, इट मीन्स इट इज माइनस 10x। नेक्स्ट y डबल डैश निकालना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट विल बी माइनस sec स्क्वायर x, क्यों? क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। नेक्स्ट y ट्रिपल डैश निकालने में इसको डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, so it will be minus 2 sec x into sec x का differentiation sec x into 10x, so it is minus 2 sec square x into 10x. Now evaluate, so y dash 0 will be minus tan 0 from here, minus tan 0, tan 0 means 0, so it is 0. Y double dash 0 will be minus sec square 0, and sec square 0 means sec 0 is your 1, so sec square 0 is also 1, so this is, but this is minus 1, so it is equal to minus 1. Next y triple dash 0 means substitute here x is equal to 0, this is sec square 0, this is tan 0, tan 0 is 0, so this will become 0, it means y triple dash 0 is your 0. Now substitute these values in this equation, so yx will be 0 plus x into 0 plus x square by 2 into minus 1 plus x cube by factorial 3 into 0 plus 4 by factorial 4 into minus 2 and so on. See here, this is 0 because this is 0. This is minus 1 because this value is minus 1. This is 0 because this one is 0. And this is 0 because y0 is 0. So it means it is equal to minus x square by 2, minus x by 4 by 4, 12, minus x by 6 by 45, minus so on. तो इस तरह से हम लोग ये निकाल लेंगे, मैक्लॉरिन से भी एक्सपेंशन निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग का आ जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अभी तक हम जितना बताए हैं आज का, इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम शुरू कर देंगे। इस पे भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है, जरूर आता है क्वेश्चन। कोई क्वेरी है तुम लोग की? एनी क्वेश्चन किसी का? नहीं समझ में आएगा तो तुम ही को बोलना होगा ना कि नहीं समझ में आया। तो जिसको अगर नहीं दिक्कत लग रही है पूछो। इक्वेशन ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, ये जो अभी आप पढ़ाए ना ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो ये तुम्हें मिल रहा है तो ग्रुप में हम क्यों दें? जो बच्चा नहीं क्लास कर रहा है उसको क्यों दिया जाएगा? नहीं सर, एक पर्सनल ग्रुप बनाया जाए तो डाल दीजिएगा। नितेश, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही साहब। कह रहे ना सर कि इसमें जो हम लोग हैं उसका पर्सनल ग्रुप बनाइए यार, उसमें डाल दीजिए। वो पर्सनल ग्रुप तो तुम्हारे सामने दिख रहा है, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट में फिर बहुत परेशानी होगी सर। अच्छा, पीडीएफ डाल देते सर, अच्छा रहता ना सर। पीडीएफ ही है, पीडीएफ बना के डाल दीजिए सर। स्क्रीनशॉट में भी क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या चीज? फिर से बोलो। स्क्रीनशॉट में पूरा नहीं आएगा सर। नहीं आएगा, रुको देखो अब आएगा पूरा। फिर क्लीन नहीं आता है। अच्छा, पूरा नहीं आ रहा है। क्लीन तो नहीं दिख रहा।
नहीं आ रहा है, Likely इसके नहीं वजह से दिखता हम है। लोग को देना पड़ रहा है। और पूरा नहीं आ पा रहा है तुम लोग का। हाँ सर। बहुत डिस्टर्ब है जी, आवाज बड़ी कट कट के आ रही है। क्या करें सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, तुम्हारे यहाँ बहुत दिक्कत है नितेश। हाँ सर, क्या अच्छा ठीक है, अभी देखो इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तुम लोग को, नहीं तो हम मैक्सिमम मिनट तुम लोग के लिए शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नहीं पूछना है, बस थोड़ा हम लोग को लिखने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे लिखेंगे इसको। स्क्रीनशॉट और सब बच्चे तो ले लेते हैं, मैथ के बच्चे ऑनर्स वाले ले लेते हैं, पीजी वाले बच्चे ले लेते हैं, बीसीए के भी बच्चे ले लेते हैं, तुम्हारे जो सीनियर बच्चे हैं। स्क्रीनशॉट तो हो जाता है, बट होगा कैसे? सर ठीक है, ले रहे स्क्रीनशॉट, आप शुरू से दिखाइए ना पेज को हम लोग को। हाँ दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट एक और बार जूम ले लो। अब जूम कैसे स्क्रीनशॉट सुनो ना मेरी बात, स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, स्क्रीनशॉट लेकर के, और तब बताओ। और ये बीच में ये खींचना बंद कर दो, जो भी खींच रहा है। पूछना है तो हमें लाइन नंबर बोलो, हम बता देते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लो और ये मुझे भेजो हाँ, दे। जूम कीजिए सर। हाँ जूम मत हाँ, कराओ, पेज ही लीजिए, बट थोड़ा जूम करके। जूम करें। हाँ, थोड़ा जूम कीजिए, कुछ दिख ही नहीं रहा। लो जूम करेंगे तो साफ तुमको नहीं दिखेगा, अभी पूरा नहीं दिखेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में अपने 2 उंगली से स्क्रीन को बढ़ाओगे दिख जाएगा। अब नीचे कीजिए। ठीक है। हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट पेज लो, नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट। ये नितेश तुम्हारे यहाँ बहुत डिस्टरबेंस है नितेश। म्यूट करें करो सर? तो। नितेश तुम अपना म्यूट कर दो, बहुत डिस्टर्ब है तेरे यहाँ। हो गया सर, यहाँ पे आगे बढ़ाइए। देखो ये फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, मल्टीप्लाई करेंगे जब इन तीनों को, देन यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये तो करना आसान है, मल्टीप्लाई करना। सिंस f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर ए मैक्सिमम और ए मिनिमम, हमको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो पहले f डैश x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। तो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। इसको करना है 0 के इक्वेट, 0 कर दिया। नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन x, so the values of x will be minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. Using that formula you get x equal to 2 plus minus 1 by root 3, means x की दो वैल्यू मिल गई, 2 plus 1 by root 3 and 2 minus 1 by root 3. Now वैल्यू से आया सर, समझ नहीं आया। क्या चीज नहीं समझ में आ रहा, बोलो। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। हाँ, ये तुम्हें इक्वेशन समझ में आया कि f डैश x निकाले हैं, ये चीज हाँ, इक्वेशन समझ में आ गया। समझ में आ गया। ये कैसा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट हाँ, ठीक। और तुम लोग पढ़े होगे क्लास 8 या 9 में कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। हाँ, पढ़े हो कि नहीं, वही बस उसी फॉर्मूले को लगा देना है। a is your 3, ठीक। b is your minus 12, c is your 11. So minus b means 12 plus minus under root b square means minus 12 square, it is 144 minus 4ac minus 4 into 3 into 11. So it is 12 into 11. तो उसको जब निकालोगे डिवाइड बाय 2a,
2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 3 मीन्स 6 हो जाएगा। उसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू ये आती है 2 + -1/√3। ओके सर। हाँ, इसको सॉल्व, ये तो बहुत सिंपल है, तुम लोग आराम से कर लोगे। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालना होगा, f"(x). सो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x वंस अगेन। So it will be 3 into 2 means 6x minus 12 or 6 into x minus 2. Now take x is equal to 2 minus 1/√3. तो जब x is equal to 2 minus 1/√3 हम यहाँ रखेंगे, 2 minus 2 cancel, so it is minus 1/√3. 6 into minus 1/√3 means it is less than 0. So f"(x) is your less than 0. ठीक, अब ये less than 0 हो गया, इसका मतलब x equal to 2 minus 1/√3 पर मैक्सिमम हो गया। ठीक, इसी तरह से x इक्वल टू 2 + 1/√3, जब यहाँ 2 + 1/√3 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो गया। 6 into 1/√3 जो कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब कि मिनिमम हो जाएगा एट x इक्वल टू 2 + 1/√3। दोनों हमको मिल गया, बट वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मीन्स f(x) at x is equal to 2 minus 1/√3. तो f max is equal to क्या करना होगा हमको, इस फंक्शन में खाली x की जगह 2 minus 1/√3 रख देना होगा। So it is 2 minus 1/√3 minus 1, 2 minus 1/√3 minus 2 into 2 minus 1/√3 minus 3, और जब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को तो इसका सॉल्यूशन आ जाता है 2/3√3। It means the maximum value of the function f(x) is 2/3√3। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। तुम लोगों को कोई क्वेरी अगर है तो पूछो मुझे। इसका ले लो स्क्रीनशॉट।